Hello friends, myself Abhilasha. It's my first video on YouTube. It's related to the first chapter of life, the first topic of life, chapters number 6, class 10 science, that is life processes. This video is surrounding on the topic digestion and absorption. We often think that how our body is able to do the work from whole day to night and from night to day. We know that our body needs energy for doing all its work and processes. Now here's the question, from where does this energy comes from? This energy normally comes from the food we eat. Now a second question arises in our mind, how food we eat gives us energy. So we may give the answer such that by digestion of our food, an alimentary canal we derives energy from it. Now, what is alimentary canal? Alimentary canal in its simplest is a tube-like structure starting from mouth and ending at anus. Alimentary canal अगर हम बिल्कुल सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे एनस पे एंड होता है. Now, the different regions of alimentary canal. The alimentary canal is divided into 3 different regions. The human alimentary canal consists of 3 regions: foregut, midgut, and hindgut. Foregut is also called stomogeal, midgut is also called menstruum, and hindgut is also called epigaster. Foregut contains mouth, buccal cavity, pharynx, and oesophagus. Midgut contains stomach, intestine up to colon region, and hindgut contains large intestine following colon and rectum and anus. Now I have drawn a diagram of human alimentary canal. In my confidence I made it good, but now it's you to comment. Please comment about my drawing. It's the diagram of human alimentary canal. Please take a screenshot if you're required. And please tell me how is my drawing. Now let's study deeply. It's oral cavity. Sorry, we should start in a sequence. It starts from mouth. Here is mouth. Now mouth opens into oral cavity or buccal cavity, which is present here. Oral cavity and buccal cavity contains salivary glands. I have located 2, submaxillary gland and sublingual gland, and this here is parotid gland. And after the buccal cavity, here comes the pharynx. Now after pharynx, here is trachea. We will study it in respiratory system. It's esophagus, which is also called food pipe, and it delivers the food from mouth to stomach. This tomb-like structure is called diaphragm. This we will also study in respiratory system. It's liver. Here is gallbladder, duodenum, the first part of small intestine. It's pancreas, a gland. Duodenum, jejunum, second part of small intestine. Ileum, third part of small intestine. Here is caecum. Caecum is the place where small intestine and large intestine joins together. It's vermiform appendix. It's ascending colon, transverse colon, descending colon, rectum, and hence standpoint anus. Did I miss it? Sorry. Now it's rectum and it's anus, and it forms the parts of human alimentary canal. Now we will discuss the parts of human alimentary canal, starting from the first and foremost part called mouth and buccal cavity. Mouth is simply an opening between the 2 movable lips, that is upper lip and lower lip. Then in mammals, the upper lip has a well-defined cleft called median cleft. It's a well-defined cleft which is known as median cleft. In humans, median cleft is not seen. Humans के अंदर नहीं दिखती, पर एक छोटा सा डिप्रेशन दिखता है. Here, ये जो upper lip के अंदर ये जो डिप्रेशन दिख रहा है ना, एक V shape का, ये डिप्रेशन दिखता है, और इस डिप्रेशन को फिलिट्रम कहते हैं. मैंने लेबल भी किया है फिलिट्रम. First of all, I must tell this, it is human oropharyngeal cavity. It is the diagram of human oropharyngeal cavity. Now, the mouth opens into buccal cavity or oral cavity, I have told. You may take
a screenshot of this as well if required. And I said you don't forget to comment about my drawing. Now, buccal cavity consists of three parts. The part number 1 is teeth, part number 2 is tongue, and part number 3 is palate. Now first let's discuss about palate. Palate in mammals are secondary in mammals the secondary palate is formed of two bones. The bone number 1 is called palatine bone and second is called maxilla bone. Palatine bone is present in middle and maxilla bone is present in margins along with the upper jaw. I would like to give you a more to know point. In mammals, buccal cavity is separated from nasal passage with the help of a well-defined palate or secondary palate. जो ह्यूमंस के अंदर जो हमारा नेसल पैसेज होता है वो बकल पैसेज से एक वेल डिफाइंड पैलेट या सेकेंडरी पैलेट के थ्रू सेपरेट होता है. Now, position of the palate. The anterior part of palate is called hard palate and it is well supported by maxilla bone. Maxilla bone जो मिडल में प्रेजेंट होती है. जो एंटीरियर पार्ट होता है वो उसके अंदर स्पेशलाइज्ड ग्रूव्स और रिजेस होते हैं जिनको पैलेटाइन रिग कहते हैं. और जो पैलेटाइन रिग होते हैं ये कार्निवरस में तो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं. जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं. और ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है ये एक हैंगिंग स्ट्रक्चर विलियम पैलेट और ऊवला के साथ अटैच्ड होता है. लेट मी मेक यू वेरीफाई इन द डायग्राम ऑफ ह्यूमन oral pharyngeal system. This is ovula. It's a hanging like structure and it is soft palate. Ovula is connected to soft palate very clearly, you can see in the diagram. Now this ulva is covered with 4 folds of mucous membrane. वो 4 folds, out of those 4 folds 2 passes downwards at each side to form membranous arc. जो ulva होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की 4 फोल्ड से बना होता है और इन 4 फोल्ड्स में से जो 2 होते हैं वो डाउनवर्ड पास करती हैं मेम्ब्रेनस आर्क्स बनाने के लिए. ये जो मेम्ब्रेनस आर्क्स होते हैं ये फिर से 2 टाइप्स के होते हैं. ये जो मेम्ब्रेनस आर्क जैसे मैंने कहा था फिर से 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है एंटीरियर आर्क और सेकंड होता है पोस्टीरियर आर्क. एंटीरियर आर्क को हम पैलेटोग्लॉसल आर्क और पोस्टीरियर पार्ट को हम पैलेटोफारिंगल आर्क भी कहते हैं. Now here is the second part of buccal cavity, that is tongue. The tongue forms the floor of buccal cavity. tongue जो होता है वो फ्लोर बनाता है buccal cavity का और इसको हम लिंगुआ भी कहते हैं. tongue होता है वो हाईली मस्कुलर होता है और वॉलेंट्री नेचर का होता है, मतलब ह्यूमन के कंट्रोल में होता है. जो टंग होता है वो बकल कैविटी के फ्लोर से अटैच होता है कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू और उस कनेक्टिव टिश्यू को हम फ्रेनुलम लिंगुआ कहते हैं. जो टंग होता है वो पार्शियली माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है और पार्शियली फारिंक्स के अंदर. जो टंग होती है वो पार्शियली माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है और पार्शियली फारिंक्स के अंदर प्रेजेंट होती है. Now, tongue is divided into 3 areas. Number 1 is root or radix linguae. Number 2 is body or corpus linguae. And number 3 is apex or apex linguae. जो टंग होता है वो जो टंग होती है ह्यूमन की वो एक बोनी स्ट्रक्चर के ऊपर टिकती है, रेस्ट करती है और उसको हम हाइपोइड पैलेट या हाइपोइड बोन कहते हैं. टंग के अंदर हम एक और जो टर्म होती है वो पढ़ते हैं उसको कहते हैं हम पैपिले. पैपिले होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस होती हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन के एरिया को इंक्रीज कर देती हैं. फिर आते हैं टाइप्स ऑफ पैपिले. सो अकॉर्डिंग टू देयर शेप पैपिले इज ऑफ 4 टाइप्स. Number 1 is vallet, it is surrounded by wall. Number 2 fungi, it is mushroom shaped. Number 3 foliate, it is leaf shaped. And number 4 filiform, it is filament shaped. Now functions of tongue. Tongues help in tasting and swallowing of food. It helps in process of speech. It means speaking. जैसे मैं आपको ये वीडियो बना के सुना रही हूँ ये भी मेरी टंग की हेल्प से मैं कर रही हूँ. It helps in mastication of food by repeatedly bringing the food under the teeth. ये बार बार फूड को घुमा घुमा के टिथ के नीचे लाती है ताकि हमारा फूड होता है वो अच्छी तरह च्यूई हो जाए और एक अच्छी तरह एक सेमी फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाए. It cleans the small food particles present in the mouth. जो टंग होती है वो स्मॉल फूड पार्टिकल्स को क्लीन करती है जो माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं.
कुछ एनिमल्स के अंदर लाइक इन एनिमल्स लाइक डॉग टंग हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ थर्मो रेगुलेशन. टंग थर्मो रेगुलेशन का भी काम करती है. अब मैंने टंग का एक छोटा सा लेकिन रफ डायग्राम बनाया है सिर्फ टंग के टेस्ट जोन्स को लोकेट करने के लिए. ये वाला जो हिस्सा होता है बिटर, ये सॉर टेस्ट का, ये जो वाइटिश, ये जो मैंने जो लाइन से शेड, ये जो मैंने लाइन से शेड किया हुआ ये साल्टी एरिया, और ये यहाँ पे जो ये शेडेड है ये स्वीट टेस्ट के बद से ये भरे होते हैं. सो यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो. और मैं आपको फिर से रिमाइंड करी हूँ, प्लीज़ मेरी ड्राइंग के बारे में कमेंट करना मत भूलना. नाउ हेयर कम्स द थर्ड part of buccal cavity, that is teeth. Teeth is present in buccal cavity. Everyone's know. It is present in vertebrates. Obvious it is present in vertebrates. शायद देखो मेरे को भी कोई एग्जांपल याद नहीं है ऐसा इनवर्टिब्रेट का जिसमें टेथ प्रेजेंट हो. I didn't remember. I will tell you in next video. Teeth are also masticatory organs. मैंने पहले बताया था. Now, it's not a more to know, but it's important. Teeth are covered with enamels only in vertebrates. सिर्फ vertebrates के अंदर ही teeth enamels से covered होते हैं. Types of teeth on basis of contact between bone and teeth. Teeth के types, जो टिथ के बहुत तरह के टाइप्स होते हैं. सबसे पहले बोन और टिथ के कांटेक्ट में, मतलब बोन से किस हिस्से में टिथ कनेक्ट होता है. सबसे पहले आता है एक्रोडोंट. एक्रोडोंट होता है वो बोन के क्रेस्ट से अटैच्ड होता है. फिर आता है प्लूरोडोंट. प्लूरोडोंट होता है वो बोन के मीडियन साइड से अटैच्ड होता है. फिर आता है थीकोडोंट. जो थीकोडोंट होता है ये तो बोनी सॉकेट में ही प्रेजेंट होता है. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ टिथ, second appearance of teeth, second types of teeth we can classify on basis of appearance of teeth in lifetime. ये तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट होता है मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट और पॉलीफायोडोंट. मोनोफायोडोंट लाइफ में एक ही बार आते हैं और इसके एग्जांपल होते हैं थर्ड मोलर और प्री मोलर्स. जो हमारा जो थर्ड मोलर होता है, जिसको हम जो थर्ड मोलर होता है वो पूरे लाइफ में ही एक बार आता है. प्री मोलर्स भी लाइफ में एक ही बार आते हैं. अगर प्री मोलर्स गिर गए तो डेंटिस्ट से जाके एक नकली दांत जुड़वाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि प्री मोलर सिर्फ एक ही बार आते हैं. फिर होता है डाइफायोडोंट, जो ट्वाइस मतलब 2 बार अपीयर होते हैं लाइफ में. इंसीजर्स, कैनाइंस, फर्स्ट और सेकंड मोलर्स इन ह्यूमंस. इंसीजर्स होते हैं वो एक बार टूटते हैं फिर से आते हैं. कैनाइंस होते हैं वो एक बार टूटते हैं और फिर से आते हैं. और ह्यूमंस के अंदर जो पहले और दूसरे मोलर्स होते हैं वो भी दूसरे आते हैं. फिर आता है पॉलीफायोडोंट, अपीयर मैनी टाइम्स इन लाइफ. ये होते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ फॉलन टीथ. ये फॉलन टीथ यूँ मत समझना प्री मोलर्स गिर जाएंगे और फिर वो रिप्लेस होके आ जाएंगे. ये सिर्फ इंसीजर्स, कैनाइंस और फर्स्ट और सेकंड मोलर्स जब दोबारा टूट जाते हैं तो उनके रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं पॉलीफायोडोंट्स. Now, on basis of set of teeth, it is of 2 types. First is milk teeth or deciduous teeth, and second is permanent teeth. Milk teeth appears early in life and fall down around the age of 6. जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना दूध के दांत है तुम्हारे, वो एक बार लाइफ में गिरते हैं. 6 ईयर्स की एज के आसपास वो वापस गिर जाते हैं. फिर आते हैं परमानेंट टीथ. जो मिल्क टीथ्स एक बार गिर जाते हैं उनके बाद जो दोबारा रिप्लेसमेंट के लिए जो टीथ आते हैं उनको परमानेंट टीथ कहते हैं. एक नॉर्मल और हेल्दी ह्यूमन टीथ सेट में कभी भी परमानेंट टीथ नहीं गिरते. Now, on basis of shapes, teeth are of 4 types. First is incisors, canines, premolars, and molars. Incisors are used for cutting and clipping of food. Canines are used for puncturing or holding or tearing of food, and premolars are used for grinding. And premolars and molars have a combined function used for crushing and grinding of food. Now, a very important thing, मतलब more to know ही important मेरे लिए more to ही नहीं होता है. The collective term used for both molars and premolars is called molariform or chick teeth. जो कलेक्टिव टर्म होती है जो बोथ मोलर्स एंड प्री मोलर्स के लिए यूज्ड होती है उसको मोलरिफॉर्म या चिक टीथ कहते हैं. नाउ एनाटमी ऑफ टीथ. तो मैं बिल्कुल सच्चे से एक बात बता रही हूँ यार, मेरे फ्रेंड्स हो या मेरे से सीनियर्स भी हो सकते हैं, जूनियर्स भी हो सकते हैं, एज का क्या पता मेरे को आपका. ये एक सेक्शन है टूथ का और मैं इसको एक बार जूम करके दिखाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में. प्लीज़ इसकी बारीकी देखिए, कितनी बारीकी से मैंने बनाया. खुद की तारीफ़ करनी नहीं चाहिए पर फिर भी
सो इट्स द सेक्शन ऑफ टिथ. मैं बीच में ही ये यूट्यूब वाले काम कर रही हूँ, पर प्लीज़ इस टिथ के डायग्राम के लिए एक लाइक दे देना. सो वी विल डिस्कस इट लेटर. टूथ टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज क्राउन. ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो हमें दिखता रहता है ब्रश करते हुए, वो होता है क्राउन. और जो हिस्सा हमारे गम्स के अंदर होता है वो होता है रूट. इनेमल, डेंटाइन. वैसे अगर 10th क्लास के हिसाब से देखें तो ये इतना डीपली नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोई एक्सटर्नली पढ़ना चाहे तो ले सकता है. स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो. मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि 10th के हिसाब से ये आने नहीं वाला, पर फिर भी एक बार नाम बता देती हूँ. इट्स नेक, गम, pulp cavity, dentine, enamel, root canal. It's again dentine here. Apical foriculum, blood vessels, nerves, cement. These are the sections of tooth. Now, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. जितना ज्ञान बांटो उतना ही बढ़ता है. The part of teeth projecting above the gum line or gingua is called crown. मैंने कहा था. The region above is called base. जो बीच का जो हिस्सा होता है उसको base कहते हैं. ये 2 टाइप्स का होता है, एक तो neck और एक root. neck होता है वो gums के inside present होता है, और जो root होता है वो bony sockets के अंदर present होता है, उसको alveolus भी कहते हैं. फिर जो इन दोनों की जो outermost layer होती है उसको cement layer कहते हैं. तो outermost layer को हम cement layer कहते हैं. Now, in the center of tooth, there is a pulp cavity containing masses of cells, blood vessels, and lymph vessels and nerves. This all constitute the pulp. Now, pulp is surrounded by a hard ivory-like substance called dentine. This dentine is secreted by odontoblast cells. Now, this odontoblast cells are the lines of bundles called collagen fibers. ये एक तरह से मैंने एक फ्लो चार्ट की तरह से बनाया है ये पूरा नीचे तक. प्लीज़ इसको आप एक लुक ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको स्टडी कर लेना. नाउ नेक्स्ट कम्स द नर्व सप्लाई. मोस्ट ऑफ द आर्ट्रियल ब्लड सप्लाई इज़ डन बाय मैक्सिलरी आर्टरी. मतलब टीथ के अंदर जो आर्ट्रियल सप्लाई जो मैक्सिलरी आर्टरी करती है. अपर टिथ में मैक्सिलरी नर्व्स आती हैं और जो लोअर टिथ में मैंडिबुलर नर्व्स आती हैं. ये जो दोनों ब्रांचेस होते हैं ये 5th क्रेनियल नर्व्स. दीज बोथ आर ब्रांचेस ऑफ 5th क्रेनियल नर्व. 5th क्रेनियल नर्व की ब्रांच होती है और ये ट्रीगेमिनल नर्व कहते हैं. इनको क्या कहते हैं? ट्रीगेमिनल नर्व. इट्स इम्पॉर्टेंट. Next come the dentition of teeth. The number and kind of teeth in mammals are represented by an equation called dental formula. Equation for dental formula is the above is written as upper jaw and lower is lower jaw, and it's written as incisors, canines, premolars and molars upon and upon. It's the equation of dental formula. Now, here is a question. How to find total number of teeth using dental formula. आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ टीथ एक डेंटल फार्मूला का यूज़ करके हम कैसे निकाल सकते हैं. तो हमें इसके लिए ऊपर तो लिखना है इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स. उनको ऐड करते हैं ना ऊपर नीचे दोनों को. जो ऊपर लिखे हैं उनको ऐड कर दिया, जो नीचे लिखे हैं उनको ऐड कर दिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये हाफ होते हैं, हाफ अपर जो और हाफ लोअर जो के. सो द टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं ह्यूमन के अंदर वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ इन डेंटल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय 2. जो जितने नंबर ऑफ टीथ डेंटल फार्मूला के होते हैं वो मल्टीप्लाई बाय 2 है. कुछ डेंटल फार्मूलाज लिखे हुए मैंने ह्यूमन्स का, जैसे 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3. इट मीन्स 2 + 1 + 2 + 3 2 + 1 + 2 + 3 इट्स इक्वल्स टू 2 + 1 3 4 5 6 7 8 8 + 8 16 × 2 32. हेयर इज काउ, शिप एंड गॉट तीनों का सेम होता है. एलिफेंट का 14 और रैट का 16. तो हमने डेंटल फार्मूला दैट इज़ डेंटाइन तक हमने ये सब पढ़ लिया. नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सलाइवरी ग्लैंड से. ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इट्स माई फर्स्ट वीडियो. प्लीज़ सपोर्ट मी सो दैट आई कैन मेक more and more videos like that and may help you. Thank you.